It is my proud pleasure and privilege to welcome all of you to this illustrious function, to felicitate a man whose life's journey has completed 75 years. But 75 years may sound very long, but for a man as illustrious as Shri Sharad Pawar, I am sure this is just the beginning. And आज का दिन मेरे लिए एक सौभाग्य का दिन है। व्यक्तिगत जीवन में 75 साल और राजनीतिक जीवन में 55 साल और संसदीय जीवन में 1 साल के बाद 50 साल हो गए। मैं नहीं जानता कि इतने सालों से लोगों ने मुझे राज्य में और देश में काम करने का मौका दिया, तो मेरी योग्यता क्या है और कहाँ तक मैंने समाज की और देश की सेवा करने के लिए प्रयास किए। मगर आप सब लोगों की उपस्थिति देखने के बाद मुझे महसूस करने लगा कि जो कुछ प्रयास और परिश्रम किए, इसका एक रिकग्नाइजेशन देश के सभी वर्ग के सभी राजनीतिक दल, इंडस्ट्री, मीडिया, कई ऐसे वर्ग हैं, इन सभी लोगों से आज मुझे मिल रहा है। आप सब महान लोग यहाँ आए, अपनी शुभकामना देकर आपने मेरा सम्मान बढ़ाया, इसलिए मैं आप सभी को अभिमान करता हूँ। मुझे मालूम है कि आप सभी माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सोनिया जी और अन्य नेताओं के कुछ शब्द सुनने के लिए आप यहाँ हैं। इसलिए मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर आप सबको फिर से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, सुमित्रा महाजन जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, बादल साहब जी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, मुलायम सिंह जी, फरूख अब्दुल्ला जी, येचुरी जी, अडवाणी जी, शरद पवार जी, प्रतिभा जी, distinguished guests and friends. I am happy to be here with you when we have come together across party lines on this auspicious and joyous occasion to celebrate Sharad Pawar ji's 75th birthday. I have known him for more than 2 decades. His association with the Congress Party is, of course, much, much longer, going back to his younger days when he took his first steps into politics. We may have differed on some occasion, perhaps on many occasions, as any two individuals would do
in a democratic system. But what has always been there, what has always been constant, is our respect for each other and the mutual belief that the legacy of our founding fathers should be protected, preserved, and promoted. Although he parted ways with us, the Congress Party, and the NCP have been and are valued allies. Sharad Pawarji has a record of enduring achievements in whatever positions he has occupied. And we would need much more than just this one function to enumerate them and celebrate them all. He was, of course, Chief Minister of Maharashtra 4 times, and he is still remembered for his leadership then and his effective administration. He was Defense Minister, and more recently, he was Agriculture Minister for a record 10 years between 2004 and 2014. No one else could have been in that crucial position for such a long time. He was a natural choice. In fact, he was the only choice. His tenure was impactful and saw several new achievements. He spoke up with passion for more profitable MSPs. It was during his tenure that production in rice and wheat reached record levels. He imparted a fresh impetus to agricultural research, and his contributions to the development of horticulture in particular are widely acknowledged. And these are just a few of his numerous achievements. The presence of so many personalities today, cutting across the political spectrum, is testimony to Sharad Pawarji's unique talents. His friendships with his political opponents and adversaries are legendary. In the modern language of IT, his networking skills are formidable. And those skills are much needed when politics takes on a bitter partisan flavor, as it does quite often. He is a politician through and through in the best sense of that term. No tribute to Sharad Pawarji can be complete without a reference to his fondness for cricket. Not many know that his father-in-law, who tragically died at a very young age, was a leg spinner who played 7 test matches for India. Perhaps this could have been one influence on him, apart from the fact that he has spent so much of his life in Mumbai, which has been the cradle of much of our cricketing talent. Whatever it is, he has given to Indian cricket administration the famed Sharad Pawar's expertise. I must make special mention of his wife, Pratibha Tai. She has always remained in the background, but I am sure she has been the anchor of his life for over half a century. Coincidentally,
her own birthday falls a day after Sharad Pawarji's, and I would like to convey my good wishes to her in advance. In his daughter, Supriya, the country has a fine, young, and promising leader who has already made an impressive mark in Parliament. And now I end by wishing Sharad Pawarji all the very best on crossing this milestone, and may he continue to bat as he has been doing and score a century at least. I first came to know Shri Sharad Pawar in the early 70s of the previous century, when I was Chief Economic Advisor in the Ministry of Finance and Shri Y.B. Chavan was the Finance Minister of India. Shri Pawar was very close to Shri Y.B. Chavan, and I had a number of conversations with him dealing with the economic and social development of our country. My interaction with Shri Pawar grew when I went to the Reserve Bank of India as its governor in the early 1980s. I have always been greatly impressed with Shri Sharad Pawar's deep interest in developmental issues and his zeal for the modernization, expansion, and development of the Indian economy. When the Congress government launched economic reforms program in July 1991, Shri Sharad Pawar was the Defense Minister of India, and he gave me, as Finance Minister, his powerful support for liberalization of India's economy. In fact, Shri Pawar had been talking about the need for economic reforms even before the Congress government, under the leadership of Shri P.V. Narasimha Rao, came to power in June 1991. In 2004, when the UPA government came to power, I had the privilege of working with Shri Pawar as a very dynamic agricultural minister of our country. माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, इस समारोह के केंद्र बिंदु श्रीमान शरद राव, प्रतिभाताई, स्पीकर महोदया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, उपस्थित सभी मंचस्थ विराजमान वरिष्ठ महानुभाव, सभागृह में उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस अमृत महोत्सव पर्व पर श्रीमान शरद राव को हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब हम छोटे थे तो सुना करते थे, पूरे शब्द तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा सुनते थे, अमल करो ऐसा अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें वहां से तुम्हें सलाम आए। आज शरद राव जी का जीवन देखते हुए लगता है कि जहां भी उनकी नज़र गुजरेगी सब दूर से उनको सलाम आएगी। और उसका कारण करीब करीब 5 दशक से ज़्यादा अखंड एक निष्ठ साधना।
वन लाइफ वन मिशन ये हम सुनते हैं, लेकिन उसके लिए अपने आप को खपा देना सरल नहीं होता है। ज़्यादातर आज़ादी के बाद और ख़ास करके 70 के दशक के बाद देश में जो नेतृत्व आ रहा है वो राजनीतिक आंदोलन की कोख से पैदा होकर के आ रहा है। लेकिन शरद राव रचनात्मक कामों की कोख से पैदा हुए राजनेता है। पिताजी कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े थे, मां राजनीतिक जीवन होने के बाद भी शिक्षा के प्रति समर्पित थी, और उनके जीवन में भी और आज भी शरद राव वो अपने प्रवचन में तो थोड़ा संकोच करके बोल रहे थे कि मैं थोड़ा बहुत समय शिक्षा के लिए दे रहा हूं, लेकिन जितना निकट से मैंने देखा है, जब भी उनसे मिलते हैं या उनके अगल बगल के लोगों से जानते हैं, अधिकतम उनका समय रचनात्मक कार्यों में लगा हुआ है। आज भी कोई बारामती जाकर के देखेगा तो चारों तरफ कुछ न कुछ रचनात्मक गतिविधियों में शरद परिवार की महक आएगी। और इसलिए राजनीतिक जीवन होने के बाद भी उनका जो मूल पिंड रहा है वो रचनात्मक गतिविधि का रहा है। और इतने लंबे अरसे की राजनीति की सफलता का मूल भी वो रचनात्मक गतिविधि है। आज के राजनीतिक जीवन में जीने वाले लोगों को शायद इसका मूल्य बहुत कम समझ में आता है, लेकिन शरद राव एक अपने आप में उदाहरण है कि उस रचनात्मक कामों के अधिष्ठान ने ही उनके राजनीतिक जीवन को एक नई हमेशा ताकत दी है। और उनको नित्य नूतन सोचना, नया करना, नया सीखने का जो स्वभाव बना, वो भी इन रचनात्मक प्रवृत्तियों के कारण बना है, और उसके लिए वो समर्पित रहे हैं। कोऑपरेटिव जीवन को भी उन्होंने समर्पित भाव से जिया है। वरना कभी कभी राजनीतिक जीवन और कोऑपरेटिव जीवन के बीच में बहुत बड़ा क्लैश आता है। कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी हमेशा सोचते हैं कि भाई अब तुम राजनीति में चले गए, तुम वहाँ चलो, हमको हमारे पर छोड़ दो। ये स्थिति रहती है, क्योंकि मैं कोऑपरेटिव जीवन को निकट से जानता हूँ। शरद राव ने दोनों के बीच में बहुत ही संतुलन रखा। ये बहुत कठिन काम है, और बहुत ही संतुलन रख के कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी बल दिया और अपने राजनीतिक जीवन को भी चलाते रहे। शरद राव जी को जब भी वे जब ऊंचाइयों पर थे, हम तो किसी गली मोहल्ले में गुजारा करते थे, तब हम उनके विषय में जो सुनते थे, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र का निकट संबंध होने के कारण महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई की गतिविधि कुछ भी होती है तो बारिश भी वहाँ हो जाए तो ठंड यहाँ आना शुरू हो जाती है, इतना निकटता है। तो वहाँ कुछ भी होता तो पता। और एक बात खुल सामने आती थी कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनकी पहचान चारों ओर फैलती थी। और मुंबई को, जो कि हमारी आर्थिक जीवन को गति देने वाली नगरी, एक कालखंड आया, पूरा एक दशक आया कि जहां अंडरवर्ल्ड ने एक प्रकार से मुंबई के जीवन को तहस नहस कर दिया था, और एक अंधकार सा माहौल दिख रहा था कि अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड के हाथ में चला गया तो क्या होगा। और मैं कहता हूं कि शरद राव की हिम्मत थी और उनका कौशल्य था कि उन्होंने मुंबई को अंडरवर्ल्ड से बचाया, उसे बाहर निकाला। ये उनका सामर्थ्य था, और झिझक नहीं थी। शरद राव की विशेषता रही है, जो मानते हैं वो करने में उनको कोई झिझक नहीं रहती। मुझे भी कभी, एक बार मैं इजराइल उनके साथ गया था, काफ़ी दिन साथ में थे, तो मुझे एक बात बताते थे कि मोदी जी, आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इमेज कॉन्शियस ज़्यादा हो। आप परवाह मत करो, जो मर्जी पड़े करते रहो।
क्योंकि उनका अपना कन्विक्शन था कि भाई जो है सो है, मुझे करना है और मैं करते रहूँगा। और वे उसको खुल करके करने का स्वभाव रखते थे और करते थे। अपने काम के संबंध में कमिटमेंट। एक दिन जब वो कृषि मंत्री थे तो मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने कहा कि मोदी जी मैं पुणे जा रहा हूँ, लेकिन मैं बीच में 1-2 घंटे आना चाहता हूँ, अगर आपको समय हो तो बात करना चाहता हूँ। मैं को आप आइए, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा मुझे कोई खास, आप आ रहे हैं तो कुछ करना है तो नहीं, बोले आपसे ही बात करके आगे चला जाऊँगा। मैं कहा आइए। और मुझे बराबर याद है वो पूरे गुजरात के खाका लेकर के आए थे। गुजरात में किस इलाके में कौन सी फसल होती है, किसानों की प्रायोरिटी क्या है, धीरे धीरे आपका किसान कॉटन की तरफ लुढ़क रहा है। और वो मुझे समझा रहे थे कि देखो भाई, तुम जरा लीडरशिप लो और किसानों से मिलो, उनको समझाओ भी कॉटन वगैरह ठीक है, लेकिन देश को गेहूं चाहिए, और तुम्हारे गुजरात के किसानों को समझाओ वो गेहूं की ओर जाएं, और तुम मुझे कुछ करके दिखाओ। बड़ा आग्रह किया उन्होंने। मैंने कहा कि आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा। खैर कोशिश की, सफलता भी मिली। लेकिन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा और जो शरद राव जी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इंपोर्ट हो, ये संभव कब हुआ कि पुणे जा रहा हूं लेकिन मैं बीच में अहमदाबाद उतरूंगा, मैं गांधीनगर आना चाहता हूं, घंटे पर तुमसे बात करूंगा और तुम अपने किसानों को समझाओ कि भाई कॉटन बहुत हो चुका, कुछ समय के लिए वो गेहूं की ओर जरा आ जाएं, ताकि देश के लिए आवश्यकता है। ये जो भाव था, अपने काम के लिए जो कमिटमेंट था, ये कमिटमेंट मैं समझता हूं कि वरना मंत्री है तो चिट्ठी जाएगी, सूचनाएं जाएगी, अफसर लोग 2 फोन कर देंगे, लेकिन इस काम को अपना काम मान करके लग पड़ना, ये कमिटमेंट शरद राव को कभी भी मिली। शरद राव को कभी भी मिलिए, अगर आप 10 मिनट भी बात करोगे, इवन क्रिकेट के संबंध में, एक बार मैं भी क्रिकेट की दुनिया में आ गया था काम में और वे भी थे, तो उसके कारण मुझे मिलना होता था। क्रिकेट की बात अगर 8 मिनट हुई है तो 5-10 मिनट तो वो किसान की बात निकाल के ही रहते थे। विषय क्रिकेट का हो, चर्चा क्रिकेट की करनी हो, लेकिन वो बात तुरंत किसान पर आ जाते थे। उनके मन मस्तिष्क में गांव, किसान और कृषि में भी आधुनिकता, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी को कैसे लाना और पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन चीज़ों पर वो ज़्यादा बल देते थे। यानी परंपरागत रूप से हम कृषि को जिस रूप से देखा है, शरद राव को कृषि को अलग रूप से देखने का उनका स्वभाव था, उनका तौर तरीका था। और मुझे लगता है कि उनका इन सारे, अभी भी आप कभी भी मिलिए और गन्ना से ऐसे गन्ना शब्द बोल दीजिए, आपको घंटे भर समझा देंगे गन्ना। सारे लेटेस्ट फिगर उनके पास रहते हैं। चीनी का क्या करना, एक्सपोर्ट कितना करना, क्या करना, सारी चीजें उसी में लगे रहते हैं। ये इन चीजों को दर्शाता है कि सार्वजनिक जीवन उनके लिए पद और प्रतिष्ठा से ही सिर्फ जुड़ा था, ऐसा नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनका जो टारगेट ग्रुप है, उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ न कुछ नया करते रहना, ये अविरत प्रयास रहता था। शरद राव में किसान वाली क्वालिटी भी है। किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया है। राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। मुझे प्रतिभा ताई को एक विशेष रूप से आदर करना है। बाकी चीजें तो सुप्रिया बहुत अच्छे ढंग से बताएगी, लेकिन प्रतिभा जी ने एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ है, देखने जैसा है।
और अब तो उसको एक फॉर्मल व्यवस्था में भी रखा है। बारामती कभी जाएं तो जरूर देखें। शरद राव ने सार्वजनिक जीवन शुरू किया, तब से हर छोटी मोटी चीज ने प्रतिभा ताई ने जिस प्रकार से संभाला है, संग्रहित किया है, उस पर नोटिंग किया है। 1950 में किसी ने शरद राव को पेन दी होगी तो देने वाला कौन, ओकेजन क्या, वो सब लिखा हुआ है और वो सारी चीजें रखी है। ये बारीकी वाला जीवन और एक राजनीति के साथ गुजारा करना, ये अपने आप में अद्भुत संयोग है। और इसलिए मैं विशेष रूप से प्रतिभा ताई को भी प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और शरद राव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Started decades back and has continued to bat consistently. In cricketing terms, he's a model all-rounder. As a very successful four-term chief minister, and virtually every important ministry in the government of India, he has handled with great diligence, great knowledge, great care. His amazing capacity, and I've seen him perform in Rajya Sabha, no matter how difficult a question might be, how tricky may be the nuances, he has always responded to it. It didn't really matter whether the response was absolutely accurate or not, but the response was very convincing. Sharad Pawar ji, I knew him over decades. Though before 1984 he didn't come to central politics, he mainly confined his activities in Maharashtra as one of the youngest chief minister of this country. When he first became chief minister in Maharashtra in 1978, he was not even 40. He was just 38. Thereafter he was shifted to, of his own of course, in the national politics and elected to parliament at a very young age. I think at the age of 27 he entered into Maharashtra Assembly. And since then till today, there is no interruption in his legislative life, either in assembly or in parliament. And I have no doubt after 2 years, he will provide us an opportunity to facilitate him on the completion of his 50 years of legislative life, which speaks his acceptance to his people, the confidence which he enjoys on the people of this country. Life with my father, mother and me has been a roller coaster. We've had good days and bad days, but on the whole it's been a great journey. And I thank each one of you from the bottom of my heart for being here, because we are blessed with one thing, is we are blessed with great friends. The love, the support, the friendship and the faith that you have all shown to my father in the last 50, 60 years. That's the only reason my father is sitting here at 75. I thank each one of you, everyone on the dais, all my friends who have come here today, all my father's old friends who have been here. We haven't been able to put each one of you in the film and the book, but as you all know, my father has lived his entire life on his terms. And I'm really happy and proud that he has lived it on his terms. My mother has suffered a little bit of it, but it's not been a bad journey on the whole. My mother's a very tolerant woman. So the strength and the power that he has had all his life is from my mother
and each one of you, the love that you all have given us. I thank you from the bottom of my heart and